Okay. मुझे थोड़ा नेटवर्क इशू था, मैं आउटसाइड जाता हूँ जस्ट। मुझे एक्चुअली थोड़ा मैम नेटवर्क का इशू है, मैं थोड़ा आउटसाइड जा रहा हूँ। मैं जस्ट 2 मिनट्स, गिव मी 2 मिनट्स। Yes. Mm-hmm. Mm. Okay. Okay. ठीक है. ओके, मैं लाइव करूंगा तो मैं आके हेलो। वो देख लेंगे 1 to 1. ओके. यस, इट्स फाइन नाउ। ओके. 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 हाय पंकज. तो यस, हेलो पंकज एक प्रदीप। चीज, या पंकज टेल मी वन थिंग कि पंकज आप इससे पहले क्या है आपका, थोड़ा अपना ब्रीफ बताओगे, कैरियर क्या रहा, कैसे एक्चुअली स्टडी. सर, मैं अभी एज अ एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर हूँ इन गुड़गांव। ओके. एंड I एक्सपीरियंस. have a knowledge, I have an good experience in Linux, MySQL, Oracle database, and ticketing tools and all those things. Okay, all the DevOps stuff work like that, right? Yeah, yes. Okay. And I have a 3.6 year experience. ओके. ओके. सो पंकज आप कहाँ पे देखे, मींस लाइक 12 के अराउंड, Actually, 15 के अराउंड. एक्चुअली मैं जो साकेत रहता हूँ ना, तो वहाँ मतलब नियर बाय था मेरे। एक्स्ट्रा मैंने बोर्ड था, मैं बोर्ड लगा था मतलब Okay, पोस्टर it's टाइप। offline or it's a recorded lecture? Did you ask to him or not? Actually, it's practical on a system. Some teachers is providing for us then. And duration for that or they give? Duration is in 6 month. 6 month Sorry, for not a 6 12K. month. Not a 6 month. It's a 3 month. Okay. Okay. So Python full stack development, right? Yes. So just see, Pankaj, let me confirm from our Animeria side what we thought actually. See, Python and the full stack development is like a backend flood plus front end. Okay, Okay. Yes. like full But, stack is equal to front end plus backend, right? and also it's a DB now included. Full stack means I think also database I and come to the backend DB and also. front end. Yeah, yeah, Pankaj. DB also, see, in the backend it is already necessary for the database. Okay, without database there is no existing of backend. Okay, so Yeah. whenever we talk about full stack, it automatically came in mind that MySQL database, MongoDB database, SQL database, PostSQL database. Okay, lots of databases there. DynamoDB is there also. So Yes. whatever, when we talk about the full stack, it will cover whole things from 0 to 10. Okay, it's like zero to Yes. hero. It's Yes. depend up to you, Pankaj, where you are just join the classes. But in Animeria, actually we follow no any recorded lecture. There is totally live classes. First thing. Okay, Pankaj. Okay. Okay. So see here, yeah, Pankaj. Yes.
So see here, full stack is like Pankaj, when you're just talking about the front end, we will talk about HTML, CSS, JavaScript, right? So these are the base of the front end. Okay, Okay. in the back end when we talk, then we concerned about the Django. You know, Django is the framework related to the Python. Okay, Yeah. सो देखो, Django. हाँ पंकज देखो, ऐसा है कि डिजेंगो जो है ना, कि सिर्फ हम डिजेंगो लर्न नहीं कर सकते डायरेक्ट, उससे पहले हम पाइथन की बेसिक्स, इंटरमीडिएट, देन एडवांस, और एडवांस के बाद हम फिर डिजेंगो सीखेंगे। हम डायरेक्टली Yes. डिजाइन नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि हमें दिक्कत आएगी जब लॉजिक डेवलप करना होता है। यू नो दैट 7 ईयर एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो, जब इंडस्ट्रीज में काम करना होता है, तो हमें कुछ क्यूरी मिलती है, देन उसके करस्पॉन्डिंग हम लॉजिक सोचते हैं, राइट? अब तुम सोचो, जैसे तुम न्यू हो इस डेवलपमेंट में, अब तुमने, लेट सपोज तुमने प्लेसमेंट ले लिया डिजेंगो डेवलपर में। ओके, अब तुम्हारे पास टास्क आता है कि सर्टेन एपीआईज बनानी है तुम्हें, और ये सर्टेन एपीआईज ये वर्क करेंगी। तो देखो, Okay. डायरेक्ट डायरेक्ट कोडिंग नहीं करते, पहले हम उसका लॉजिक बनाते हैं कि लॉजिक क्या होगा, कैसे हम अप्रोच करेंगे सॉल्यूशंस को। तो ये जो गैप है ना पंकज, ये सॉल्यूशन सोचना, सॉल्यूशन लॉजिक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। 80% हमारा ये मैटर रखता है कि हम कैसे सोच रहे हैं, कैसे थिंक कर रहे हैं, राइट? जी। तो एन्यूमेरिया तुम्हें ये लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस कराएगी, जो कि कोर लॉजिक जो होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब फ्रंट एंड और बैक एंड एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये चीज तुम्हें हर कोई इंस्टीट्यूट नहीं बता सकता। हर कनेक्शन एक एक चीज को नहीं कर सकता, ये माई गारंटी पंकज। ओके, Yes. Yes. सो यहाँ पे कवर क्या होगा, बेसिक्स से तुम्हारा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, देन पाइथन बेसिक्स, इंटरमीडिएट, एडवांस, एंड देन आफ्टर डिजेंगो एंड डेटाबेस। एज पर योर चॉइस, यू कैन चूज मोंगो और माइस्क्यूएल और एसक्यूएल। ओके, तीनों में से कोई भी डेटाबेस तुम चूज करके लर्न कर सकते हो। एज पर माई कंसर्न, तुम मोंगो सीखो। मोंगो सबसे ज्यादा यूज है अभी मार्केट में, और मोंगो से प्लेसमेंट भी काफी अच्छी हो रही है अभी। डिजेंगो पाइथन के साथ काफी अच्छा यस कंपेटेबल सर, है इनका एक्चुअली मार्केट। कॉम्बिनेशन जो भी है, जो ज़्यादातर मतलब पोर्टल्स पे जॉब हैं वो पाइथन प्लस मोंगोडीबी, बहुत कॉम्बाइंड जॉब्स हैं। मतलब इनका तो मस्ट है, स्किल्स ये होना चाहिए। और इसका मतलब ज़्यादा डिमांडेड है, इस टाइम ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है पाइथन एंड मोंगोडीबी। एग्जैक्टली पंकज, देखो पाइथन सीखते हो ना, मल्टीपल फायदे होंगे। एक तो मशीन लर्निंग में जा सकते हो, डेटा साइंस में जा सकते हो, डीप लर्निंग कर सकते हो, ठीक है, NLP कर सकते हो, राइट? तुम चाहे जितने भी मॉडल ट्रेंड हो रहे हैं आजकल के, सारे फील्ड्स में जा सकते हो, अगर तुम्हारी पाइथन स्ट्रांग होती है तो। ओके, जी। और पाइथन में तुम्हारा बेसिक्स तो क्लियर होंगे, प्लस तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर्स भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, जिससे तुम एंड ऑफ द डे तुम अपना लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हो, और कोई भी रियल टाइम सिनेरियोस पे तुम सोल्यूशन कर सकते हो। ओके, ठीक है। कोई सर वन मोर थिंग, हम्म, एक्चुअली आई वांट, आप मतलब फुल स्टैक का मुझे करना था। तो फुल स्टैक में आपको मतलब पाइथन, देन जावा नोट्स एंड जेएस, एंड जावा जेएस क्वेरीज वगैरह वो भी करेंगे क्या? नहीं देखो, नोट जेएस तुमने गलत बोल दिया अभी। जस्ट 1 मिनट पंकज, 1 मिनट।
हाँ पंकज, सॉरी एक कॉल आ गया था जस्ट। हाँ ठीक है पंकज, देखो फुल स्टैक में ना नोड जेएस इज बैकएंड, ओके। नोड जेएस तुम्हारा फ्रंट एंड नहीं है, नोड जेएस बैकएंड है, वो जावास्क्रिप्ट की फैमिली है, ओके। तो नोड Okay. जेएस बैकएंड तुम कोई एक ही सीख सकते हो, या फिर तुम बैकएंड में डिजांगो सीखो या फिर नोड जेएस सीखो, ठीक है। फ्रंट एंड में है तुम्हारे जावा स्क्रिप्ट, HTML CSS, ओके। एंड देन तुम्हारे Okay, okay. बैकएंड में हाँ डिजांगो आ जाएगा। नोड जेएस योर बैकएंड पार्ट है पंकज। सो नोड जेएस सीखना है तो फिर Actually, तुम्हें सर मुझे बेसिकली नॉलेज जैसे 11th 12th में मेरे पास पाइथन था, तो मतलब इतना है क्योंकि मुझे पाइथन इजी लैंग्वेज था, थोड़ा अच्छा लगा। और हाँ फिर नहीं मैंने थोड़ा अब मतलब फिर इतना नहीं उसमें तो पढ़ाया इतना नहीं जाता कि बस वो नहीं एग्जाम के वही थ्रू इतना पढ़ाया सी जाता है। पंकज, वंस तुम यहाँ पे एक बार डेमो लो, अभी तो तुम्हें खुद आइडिया भी लग जाएगा कि क्या है। पहले क्लियर कर लो डाउट, वही क्लियर करने के लिए मैं आया हूँ। तुम जी। डाउट में मत रहो, तुम्हें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ फुल स्टैक के लिए पूरा तुम्हारा कवर होगा, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, ओके। फिर तुम्हारा पाइथन बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, डेटा स्ट्रक्चर। देन उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा डिजेंगो। डिजेंगो में तुम्हारे सारे आ जाएंगे, मोंगो डीबी आ जाएगी, जो कि रेस्ट एपीआई के साथ तुम्हारा फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्ट करना सीखोगे। और एक लाइव प्रोजेक्ट होगा, और दो तीन हमारे जो होंगे सब प्रोजेक्ट्स होंगे। तो तुमको इतने से ही काफी हैंड्स ऑन तुम्हें नॉलेज हो जाएगी। एंड ऑफ द जब क्लास तुम्हारी खत्म होगी, तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगी पंकज, ओके। नहीं एक्चुअली सर, जैसे मैं ये चाहता हूँ, जैसे अब मेरा यहाँ पे जो भी है, मतलब मैं अगले कंपनी में अगर अप्लाई करूँ तो उन्हें ये मैं बता सकूँ कि हाँ मैंने वर्क कराया और वहाँ पे जाके मैं कवर अप कर सकूँ। सो जैसे मान पंकज लीजिए मैंने मेरा हाँ बिल्कुल पंकज, इसीलिए तो हम मेजर प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना। एक एक मेजर प्रोजेक्ट जो होगा वो तुम्हारा हेलो। पूरा फुल स्टैक प्रोजेक्ट होगा वो, जिसमें तुम एंड टू एंड हर एक चीज एक्सप्लेन करोगे। लाइक तुम्हारी जैसे लेट सपोज रेलवे या मैनेजमेंट सिस्टम हो गई, या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, या फिर नेटफ्लिक्स का जी पूरा जो प्रोसेस हो गया बैक एंड फ्रंट एंड, वो एक हम जी। अपना यूनिक प्रोजेक्ट बनाएंगे। वो प्रोजेक्ट तुम खुद बनाओगे, मैं तुम्हें उसमें हेल्प करूंगा, ओके। सर जो लर्निंग करोगे उसमें सारा कवर अप होगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा मेजर प्रोजेक्ट होगा जो तुम उसको रिज्यूमे में अपने पुट कर पाओगे, जिससे तुम्हारी प्लेसमेंट में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, ओके। ओके। सर तो टाइम ड्यूरेशन कितना होगा? टाइम ड्यूरेशन देखो, इसके लिए 3 मंथ का रखेंगे हम, ओके। फुल स्टैक 3 मंथ। एग्जैक्टली। ओके फ्रेशर होते ऐसा। पंकज तो मैं 6 मंथ का होता, बट यू नो ऑलरेडी यू आर इन द डेवलपमेंट मोड, राइट। तो तुम इसे 3 मंथ में आराम से ग्रैप कर पाओगे। एक्चुअली सर थोड़ा ज़्यादा ही मैं एक्साइटेड हूँ करने के लिए, तो मैं तो अचीव बहुत जल्दी कर लूँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बस ये है थोड़ा सा सर, मुझे फ्लो और वो नहीं मिल पा रहा है कि प्लेटफॉर्म की मुझे करना क्या है एग्जैक्ट। मुझे टीचर्स मिले, मैं आपको खुल के बता दूं, एक्चुअली हम्म। पाइथन भी जावा भी वो लोग सिर्फ एज अ कॉलेज बेस मुझे लगा, ये कॉलेज बेस और एग्जाम क्रैक कराने के हिसाब से हैं, लेकिन मुझे जो मुझे चाहिए वो नहीं ले पाऊंगा। नहीं नहीं, यहाँ देखो। यार, तभी मैंने डेमो सेशन के लिए मैंने उन्होंने मैम ने जब बोला कि आप मतलब एज अ फील्ड हो, मतलब फील्ड से रिलेटेड हो, आईटी से ही हैं टीचर्स जो वो कराते हैं, फिर मुझे लगा कि हाँ कि फिर वो मेरे प्लस पॉइंट ये बना कि मैंने सोचा कि वो उन लोगों ने प्रोजेक्ट्स हैंडल करे हैं, फेसेस करी हैं प्रॉब्लम्स, तो वो चीज़ मुझे वो बताएंगे तो मेरे देखो लिए इजी पड़ेगा। अब मैं एज अ टीचर वो पल पर चला जाऊँ वहाँ पर, यही है सर। मेरी वो स्क्रीन दिख रही है पंकज, खाली लैंग्वेज के थ्रू मैं बताएंगे समझ मुझे। गया, मेरी स्क्रीन दिख रही है यस ना। यस यस। अब स्क्रीन देखो, मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। ये होता है सिस्टम डिजाइन, ठीक है, जो लाइव एप्लीकेशन पे कैसे डिजाइन करते हैं। ये तुम्हारा मॉड्यूल हो गया फ्रंट एंड, ये तुम्हारा हो गया बैक एंड, ठीक है। अब जो तुम फ्रंट एंड सीख रहे हो ना, वो तुम्हारा कवर होगा HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। इसमें तुम क्या करते हो, जो कि बेसिकली सारे, जैसे लेट्स नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले लो। नेटफ्लिक्स में क्या होते हैं, सामने फ्रंट में हमें बहुत सारी लिस्ट दिखती है ना मूवीज की, राइट। बहुत सारी मूवीज की लिस्ट दिखती है, हमारे अकाउंट डिटेल्स दिखते हैं, फिर हम जैसे किसी पे क्लिक करते हैं तो हमें वो मूवी प्ले हो जाता है, राइट। अब ये फ्रंट एंड क्या करता है, जी जी। बैक एंड को भेजता है, ठीक है। बैक एंड को भेजा। अब बैक एंड क्या करता है, डेटाबेस को हिट करता है, ठीक है। डेटाबेस।
अब तुम्हारा ये डेटाबेस कोई भी हो सकता है, माई स्क्यूएल हो सकता है, लेट सपोज मोंगो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बैकएंड क्या करेगा, डेटाबेस के पास जाएगा और वो डेटा लेके आएगा, और डेटाबेस किसको सेंड कर देगा, बैकएंड को सेंड कर देगा। फिर बैकएंड क्या करता है, ये कुछ प्रोसेस करेगा, कुछ सर्टेन ऑपरेशन करेगा ये, ओके। और जैसे ही ऑपरेशन करने के बाद ये बैकएंड को रिस्पॉन्स करके फ्रंट एंड को भेज देगा। तो तुम्हारी जो बैक फ्रंट एंड है वो रिक्वेस्ट करता है, और तुम्हारे फ्रंट एंड जो है उसको रिस्पॉन्स भेज देता है। तो ये जो होल सीनेरियो है, अब बैकएंड जो लर्न करोगे वो तुम लर्न करोगे डिजांगो पाइथन से, ठीक है। डिजांगो पाइथन से पूरी बैकएंड करोगे। तो ये जो इंटायर पूरा प्रोसेस है ना पंकज, ये पूरे इंटायर प्रोसेस में तुम्हारा टोटली जो है किसके काम आएगा, फुल स्टैक का काम आएगा, ओके। सर जीएस और जीएस एचटीएमएल सीएसएस ये तो वेब डिजाइनिंग पेजेस वगैरह वो क्रिएट करने के लिए हुआ ना, आई थिंक। हाँ, नहीं, ये पूरा तुम्हारा जो एंड टू एंड डायनेमिक पेज है पूरा इससे क्रिएट कर सकते हो। ओके। एंड इसमें पीएचपी भी तो होता है ना, वो पीएचपी वो भी शायद एचटीएमएल का ही पार्ट पीएचपी है। देखो एचटीएमएल आउटडेटेड हो सीएसएस। चुका है, बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है, अभी मार्केट में इसका डिमांड नहीं है उतना, ओके, जितना एचटीएमएल। देखो मेन इंपॉर्टेंट है तुम्हारा जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट से तुम कुछ भी लर्न कर सकते हो, रिएक्ट जेएस लर्न कर लो, नेक्स्ट जेएस लर्न कर लो, कुछ भी लर्न कर सकते हो। तो ये जावा स्क्रिप्ट काफी ज्यादा पावरफुल टूल है, ओके। जितनी भी वेबसाइट बनी है सारी तुम्हारी जावा स्क्रिप्ट पे ही बनी, टोटली। अच्छा सर, बीटेक में जो लोग, मतलब मैं बीटेक से नहीं हूँ, मैं बीएससी मेरा है। जो बीटेक में जो मतलब टीचर्स कराते हैं वो जावा, मतलब ये एचटीएमएल या सीएसएस या जावा स्क्रिप्ट कराते हैं, वो जावा मतलब लैंग्वेज, वो नोट्स जेएस वगैरह। नहीं तो देखो लोग बीटेक जैसे का कुछ ना, लोग हायर होते हैं कम। नहीं जनरली स्टार्ट ही करते हैं एचटीएमएल से ही स्टार्ट करते हैं, फिर सीएसएस जाते हैं, फिर जावा स्क्रिप्ट पे आते हैं। फिर जैसे ये लर्निंग हो जाती है तो उनको फिर मूव कर देते हैं बैकएंड पे। तो बैकएंड में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं तुम्हारी, जैसे पाइथन की फैमिली है डिजेंगो, तो डिजेंगो लर्न कर लेते हैं। जावा स्क्रिप्ट की फैमिली है तुम्हारी नोड जेएस, तो नोड जेएस लर्न कर लेते हैं। जावा की है तो स्प्रिंग बूट है, तो स्प्रिंग बूट लर्न कर लेते हैं। तो तुम्हें सब कुछ नहीं सीखना है ना, हर फ्रेमवर्क नहीं सीखना है, कोई एक को सीखना है, राइट। तो इस डिजेंगो पाइथन में तुम्हें काफी ज्यादा इस पे क्रेडिट मिलेगा, तुम इस पे काफी कुछ लर्निंग कर सकते हो, ओके। जी। सर 3 मंथ्स बाद जैसे मैं ये इसके बाद और भी कुछ सीखना चाहूँ तो वो मैं आपसे फिर प्रेफर ही हाँ करूँगा बिल्कुल, क्या? बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे जैसे कुबरनेट, डॉकर और फिर एडब्ल्यूएस भी ये भी सीखना था। क्योंकि एग्जैक्टली मेरा क्योंकि मेरा ये है सर, कहीं भी अप्लाई करूँ तो कुछ चीज की मेरे पास कमी ना हाँ, नहीं बिल्कुल, देखो मैं जिस मेरे से कनेक्ट हो। होने मैं का तुम्हें मल्टीपल फायदे होंगे। मैं तुम्हारे हम मेरी साइड से हम तुम्हें रेफर भी करेंगे कंपनीज में, ओके। अब तुम्हें जैसा मैं ट्रेंड करूंगा उसके हिसाब से तुम्हें इंटरव्यूअर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा और तुम डेफिनेटली उसका आंसर दे पाओगे, इट्स माय गारंटी। तो ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ यहाँ ज्वाइन करके सिर्फ पढ़ के चले जाओगे, यहाँ से तुम्हें प्लेसमेंट्स के भी ऑफर मिलेंगे। जनरली जो कंपनीज होंगी हमारी टाई अप ज्यादातर गुड़गांव, नोएडा और चंडीगढ़ से, ओके। ओके पंकज, जी कोई सर। डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ बस सर वही है, थोड़ा सा मुझे एक्चुअली दूर पड़ेगा, मतलब जनकपुरी साइड, एक्चुअली मैं साकेत रहता हूँ। वो तो थोड़ा ऑनलाइन कर सकते हो अगर ट्रैवलिंग पंकज पॉसिबिलिटी है तो। ट्रैवलिंग का इशू रहेगा सर। ऑनलाइन में ये है, सिस्टम्स पे वो वाली चीज में सर आप प्रैक्टिकल कराएंगे, वही है ना, तो थोड़ा। ओके मैम, पालम पालम से कितना पड़ेगा, वॉकिंग डिस्टेंस है? ओके ओके। ठीक है मैम। यस मैम, वो ऐसा है ना, थोड़ा ऑफिस का वो है दिक्कत, वो नहीं है, पढ़ने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा
थोड़ा हाइंड साइड कर ली। तो उस क्लास मेरा गुड़गांव। हाँ। तो मैम ओके, टाइमिंग क्या रहती है क्लास की? हाँ, ठीक है। मैं मैम एक बार विजिट करता हूँ, फिर उसके बाद मैम मेट्रो। तो नो इशू मैम, वो तो मैं हौज खास उतर के मैजेंटा लाइन पकड़ के पालम आ सकता हूँ, उसका कोई इशू नहीं है। हाँ, और वो सैटरडे संडे शायद वो कुछ दिन भी क्लासेस होती हैं। ओके, मंडे ऑफ हो, बाकी सैटरडे संडे देन फुल वीक। ओके मैम, ठीक है, मैं विजिट करता हूँ एक बार आके। सैटरडे या बाकी मुझे सब अच्छा लगा। और वन ऑफ माय फ्रेंड, मैंने आज उससे भी डिस्कस करा है कि साथ में चलने के लिए, वो भी शायद ज्वाइन में भी, बट मैं उसके साथ आता हूँ। ठीक है, ओके, श्योर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।